Good evening, all of you. Namo Namaha. Happy Raksha Bandhan. Yes. So just let me know. Are we started with a poem Avyayamala? Yes or no? Okay. We have completed Kim Krutva last time, right? Okay. So quickly let's recap the Kim Krutva. एक बार revise करते हैं. And then we have to focus on one more part of Avyay and then हम लोग exercise भी solve करेंगे. Okay. चलो. So let's move ahead. किम कृत्वा में लास्ट टाइम हमने देखा था कि इन किम कृत्वा द फर्स्ट अव्यय इज कॉल्ड एज तुआंत अव्यय. तुआंत क्यों बोला है? बिकॉज it is ending in twa or the variations of twa like twa, dhwa, twa, dhwa, itwa and tuanta avyay. Also, you know what is the purpose of using tuanta avyay, that it shows previous actions. अगर एक ही आदमी दो तीन एक्शंस एक साथ परफॉर्म कर रहा है तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब हम प्रिपेयर करते हैं तब प्रीवियस एक्शंस डिनोट करने के लिए हम तुआंत अव्यय यूज करते हैं. वैसे ही हम और एक अव्यय यूज करते हैं, दैट इज ल्यबंत अव्यय. शायद हमने ये भी सीखा था. ल्यबंत अव्यय का भी नाम सेम ही है, पूर्व कालवाचक धातु साधित ल्यबंत अव्यय. तो कभी कभी एग्जाम में अगर आपको डिनोट किया कि राइट डाउन पूर्व कालवाचक अव्ययस, पूर्व कालवाचक अव्ययस मतलब व्हाट? यस, इट कैन बी तुअंत एज वेल एज ल्यबंत. तो दोनों भी आप उसमें लिस्ट आउट कर सकते हो अगर पूर्व कालवाचक बोला. ओके स्टूडेंट्स, तो पूर्व कालवाचक में इट इज कंपल्सरी दैट इट शुड स्टार्ट विद उपसर्ग एंड इट शुड एंड विद य. Now let's move ahead. We have already solved this exercise. कुछ हमें match the column करना था, खादती, खादित्वा, etc. Then we have already done with this exercise, right? Two groups. गणद्वय लिखत, गणद्वयार त्वांत and लेबंत. किया था कि नहीं किया था? No. Okay, चलो quickly. तो आपको करना क्या है? This is a list. Okay, we'll do it now. दिस इज अ लिस्ट ऑफ अव्ययस. इसमें दोनों टाइप्स के अव्यय मिक्स है. देखते हैं कि आपको रिकॉग्नाइज करना आता है कि नहीं. यस, तो आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है त्वांत अव्यय एंड सेकंड कॉलम में विशेषम नहीं लिखना है, वो वहां पे रब करो, वहां पे आपको लिखना है ल्यबंत अव्यय. So you have to make two groups, twanta and lyabanta. All the words ending in twa, dhwa, twa, dhwa, itwa, itwa will be in first column and remaining words will be in second column as lyabanta avyay. Title of second column is lyabanta avyay. Okay, so who is ready with the list of twanta avyayas? I want a list of twanta avyayas. First column. Yes, Harshit. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Can I start? Yes. Teacher, ma'am, in Tuandavya, it will come Ukatva, Pujayitva, Dhrutva, Dhavitva, Snatva, Sikatva, Stitva, Chalitva. Very good. Fantastic. Thank you so much, Harshit. Welcome, ma'am. तो स्टूडेंट्स, हमारे आंसर्स कुछ इस तरह से हो गए. आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो ऑल द त्वांत अव्ययस आर रिटन देयर एंड ऑन राइट साइड दे आर नॉट विशेषम. वो एक छोटा सा एरर है पीपीटी में. आपको वहां पे लिखना है ल्यबंत अव्यय एंड ऑल द ल्यबंत अव्ययस आर लिस्टेड ऑन राइट साइड रेड कलर. ल्यबंत अव्यय यानी कि रिमेनिंग जो भी लिस्ट में था वो सब ल्यबंत बन गया बिकॉज उसके एंडिंग में य आ रहा है. कभी कभी मिक्स्ड फॉर्म में, कभी कभी सिंगल य हमें दिख रहा है. तो संपाद्य, संहृत्य, प्रविश्य, उड्डीय, निमज्य, अवतीर्य, उत्थाय, आरुह्य, उत्पत्य, निष्पीड्य, उद्घाट्य and निष्कास्य all are ल्यबंत अव्ययस showing previous actions but starts with upasarga, ends with ya. त्वांत अव्यय always have single dhatu and ends with variations of twa. Okay students, let's move ahead. I hope आपने नोट डाउन कर लिया होगा. Mark it on your textbook.
Now, next question we have Bhinnam Avyayam Chinuta. Bhinnam means different, odd man out. So चार options है, we have to find out odd man out. I want this time more students to involve in this particular activity. Not same hands again. Because सबको एग्जाम देना है and ऐसे simple questions हमें एग्जाम में आने वाले which will give you a good score. So first है रक्षित्वा, उषित्वा, उपदिश्य and उक्त्वा. Who would like to tell the answer? Okay, let's give chance to Nilay. Nilay. Hello, ma'am. Yes, Nilay. First answer. Upadishya. Very good. And why? Reason? It's Labhyanta Avya and rest are Tvanta. Wow, fantastic. Very good. Thank you. So students, see, you have to just recognize दो टाइप्स के ही अव्यय है. अभी थोड़ा और आगे जाएंगे तो 3-4 टाइप्स के अव्यय एक साथ आ जाएंगे, तो इसीलिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं. चलो, तो अभी क्विकली टेल मी द सेकंड आंसर. Just a minute. Yes, we'll give chance to Shruti. Shruti from DN Nagar. Yes, Shruti. Second answer. वंदित्वा. Second one. Okay, ठीक है. Third one का आपने बता दिया. No problem. वंदित्वा. Thank you, Shruti. Correct answer. Thank you, miss. तो श्रुति ने हमें थर्ड आंसर बता दिया. निमंत्र्य, वंदित्वा, पराजित्य एंड संभूय. अगेन स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे वंदित्वा इज त्वांत एंड रिमेनिंग वंस आर ल्यबंत. चलो, वी वांट आंसर फॉर द सेकंड वन. तीर्थवा, अनुज्ञाय, सुक्त्वा, मत्वा. यस, तन्वी फ्रॉम डीएन नगर. Hello, ma'am. यस तन्वी, सेकंड आंसर. Yes. Anudnyayo. व्हाई? Which avya is this? Miss, it is Labanta Avya, others are Tvanta Avya. Very good. Thank you so much. Thank you, ma'am. Let's give chance to Tirtha. Tirtha from Vikrodi. Yes, ma'am. Fourth one, last row. Ma'am, Ganitva. Ganayitva. Okay. Very good. Thank you so much. Welcome, ma'am. So correct answer दिया है तीर्थ ने, गणयित्वा. Again, this is a त्वांतव्य. एंडिंग में अयित्वा ऐड हुआ है, अयित्वा. एंड रिमेनिंग वंस आर ल्यबंतव्य. तो देखो कितना सिंपल सा है. बट अभी हम आगे जाते हैं. दीज आर योर आंसर्स एंड वी हैव टू लर्न टुडे अ न्यू अव्यय जिसका टॉपिक है किम कर्तुम. किम कर्तुम. ओके. तो अभी ये जो कर्तुम है उसी को हमें रिवील करना है कि कर्तुम हमें एक्चुअली क्या बता रहा है. देखते हैं क्या क्या है इसमें. सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड सम सेंटेंसेस. पहला आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है युवकः चित्रपट गृहम गच्छति चित्रपटम पश्यति च. एंड 3 पिक्चर्स दिए हुए जस्ट लाइक लास्ट टाइम. पहले पिक्चर में सिर्फ बालकः है या युवकः है, यंगस्टर. सेकेंड में एक थिएटर दिखाया गया है एंड शायद वहां पे बाहुबली का फिल्म लगा हुआ है. एंड थर्ड में आप देख सकते हो कि वो बाहुबली का फिल्म देखने के लिए जा रहा है. तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे दो चीजें. एक युवक चित्रपट गृहम गच्छति. चित्रपट गृह मतलब थिएटर. ओके. तो सिनेमा हॉल में जा रहा है युवक. एंड देन हमें और एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है चित्रपटम पश्यति च. चित्रपट मतलब फिल्म, मूवी. पश्यति च, he is going to watch a film. तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हमें याद रखना है कि सेम लाइक लास्ट जैसे कि हमने कृत्वा एंड ल्यबंत यूज किया, त्वांत एंड ल्यबंतव्य, वो हमें प्रीवियस एक्शंस दिखाने के लिए थे. यहाँ पे भी 2 एक्शंस है. बट यहाँ पे हमें ऐसा बोलना है कि बॉय इज गोइंग टू सिनेमा हॉल टू सी द मूवी. यहाँ पे हमें एक क्रिया जो वो परफॉर्म कर रहा है वो क्रिया के पीछे क्या प्रयोजन है, what is the reason behind performing a single action, वो हमें इंट्रोड्यूस किया गया है
एंड इसीलिए देखो सेकंड पिंक कलर के वर्ड में एक वर्ड है द्रष्टुम, वो सेंटेंस अब हमें रीड करना है। युवकः चित्रपटम द्रष्टुम चित्रपटगृहम गच्छति। युवकः यंगस्टर, गच्छति गोज, कहाँ पे जा रहा है, चित्रपटगृहम। एंड क्यों जा रहा है, द्रष्टुम, द्रष्टुम मीन्स टू वॉच, द्रष्टुम मीन्स टू वॉच। तो अभी ये कर तुम, द्रष्टुम, हसितुम, लभितुम, खादितुम, तुम वाले जितने भी अव्यय हमें यहाँ पे दिखने वाले हैं, सबको हम बोलने वाले हैं तुमंत अव्यय। क्यों तुमंत, अंत मीन्स एंड, तुम एट द एंड, इसीलिए तुमंत अव्यय। पहले हमने सीखा त्वांत, देन हमने सीखा ल्यबंत, एंड द थर्ड इज तुमंत, बट उसका फंक्शन अलग है। त्वांत ल्यबंत ट्विंस थे, अभी तुमंत उनका फ्रेंड है। तुमंत इज ऑल्सो अव्यय, बट उसका फंक्शन अलग है, फैमिली अलग है। एंड इसीलिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसका फुल नेम क्या है। जैसे कि हमने त्वांत ल्यबंत का फुल नेम देखा, पूर्वकालवाचक धातु साधित त्वांत अव्यय, पूर्वकालवाचक धातु साधित ल्यबंत अव्यय। पूर्वकालवाचक मतलब प्रीवियस एक्शंस दिखाने वाले। अभी देखते हैं इसका नाम क्या है। तुमंत का पूरा नाम है हेत्वर्थक धातु साधित तुमंत अव्यय। क्या नाम है, हेत्वर्थक धातु साधित तुमंत अव्यय। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट वर्ड है हेत्वर्थक, हेतु मीन्स रीजन, पर्पस, हेतु मीन्स रीजन और पर्पस। हेत्वर्थक मतलब शोइंग रीजन और पर्पस ऑफ द एक्शन। कोई एक एक्शन परफॉर्म करने के पीछे मेरा क्या प्रयोजन है, क्या हेतु है, क्या रीजन है, क्या पर्पस है, ये सब शो करने वाला जो भी अव्यय है उसको हम कहेंगे तुमंत अव्यय। सेकेंड वर्ड बहुत ही सेम है, धातु साधित, इट इज मेड अप ऑफ धातु, वो धातु से बना हुआ रहेगा। एंड तुमंत अव्यय इज द नेम ऑफ दैट अव्यय। अभी उसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला इज जस्ट सेम लाइक त्वांत अव्यय, बट एंडिंग्स अलग है। क्रियापदम, पार्ट ऑफ क्रियापद, क्रियापद का कोई तो एक वर्ड लेटर वहां पे चाहिए, एंड प्लस एंडिंग में क्या चाहिए, तुम और धुम और तुम और ढुम और इतुम और अइतुम। देखो सिमिलर है, हमने सीखा था त्वा और ध्वा और ट्वा और ढ्वा और इतवा और अइतवा, सेम ही यहाँ पे भी है, तुम और धुम और एंड सो ऑन। ओके अभी देखते हैं उसके एग्जाम्पल्स। नीचे देखो लास्ट लाइन, गंतुम, रेड कलर में तुम को हाईलाइट किया है, लब्धुम, धुम को हाईलाइट किया है, एंड पठितुम, एंडिंग में इतुम है, पठ प्लस इतुम पठितुम। अभी अगेन हमारे मन में क्वेश्चन है कि कहाँ पे तुम यूज करना है, कहाँ पे धूम, कहाँ पे तुम, उसका आंसर हमें कब मिलेगा, एंड में। अभी हमें सिर्फ हाउ टू रिकॉग्नाइज तुमंत अव्यय इतना सीखना है। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, जब भी हमें ये सब एंडिंग्स दिखेंगे तो हम बोलेंगे तुमंत अव्यय। एग्जाम में आपको ये भी बोल सकते हैं, राइट डाउन हेत्वर्थक अव्यय। व्हाट इज हेत्वर्थक अव्यय, मतलब तुम में एंड होने वाले अव्यय। व्हाट इज तुमंत अव्यय, मतलब तुम में एंड होने वाले अव्यय। एक ही अव्यय के दो नाम है। चलो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाला है। धातु, अभी देखो तीनों भी अव्यय हमारे सीख के हो गया, त्वंत ल्यबंत तुमंत। तो एग्जाम में तीनों के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन है धातु साधित अव्यय यानी चित्वा लिखत। धातु साधित अव्यय यानी मतलब तीनों भी टाइप्स के धातु साधित अव्यय पैराग्राफ में प्रेजेंट हो सकते हैं। पहले लेसन का पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एंड मैंने नया नया आप सीखे हो इसलिए मेंशन किया है कि ल्यबंत अव्यय फाइंड आउट करो। पैराग्राफ किसी को नहीं लिखना है, बस मुझे पहले ओरली आंसर्स बताओ। ल्यबंत अव्यय कौन सा है फ्रॉम दिस पैराग्राफ। ड्रॉप योर आंसर इन चैट बॉक्स। ये पूरे पैराग्राफ को आपको स्कैन करना है, रीड इट केयरफुली within 5 to 6 seconds and just tell me which lyabant avyay is present in this particular paragraph. Someone is saying veerabalasya, someone is saying devadattasya, wrong. कॉन्सेप्ट देखो, ल्यबंत अव्यय में क्रियापद होना चाहिए। यस, यशवी एंड निलय ने करेक्ट आंसर दे दिया है। अरमान इज गिविंग करेक्ट आंसर। आर्या, तन्वी, रिया ने गलत आंसर दिया है। तस्य रॉन्ग आंसर है। देखो अभी तक मेरे पास 4 आंसर्स आए हुए सबके मिला के। पहला था वीरबलस्य, रॉन्ग आंसर। सेकंड है तस्य, रॉन्ग आंसर।
थर्ड है देवदत्तस्य, रॉन्ग आंसर। फोर्थ है गृहम, रॉन्ग आंसर। एंड फिफ्थ है स्वीकृत्य, करेक्ट आंसर। स्वीकृत्य करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट? बिकॉज स्वीकृत्य में स्वीकार करने का एक्शन है। स्वीकृत्य स्वीकार करना, एक्सेप्ट, एंड देन एंडिंग में य है। हमें एक्शन प्लस य चाहिए स्टूडेंट्स। एंड वीरबल, देवदत्त, तस्य, ये सब में नाउन्स एंड प्रोनाउंस प्लस य था, तो हमें नाउन्स नहीं चाहिए। वी वांट एक्शन, वर्ब्स, क्रियापदस। देखा कितना सिंपल दिख रहा था, बट ऐसे मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। इसीलिए रीड द पैरा केयरफुली। रोज आपको क्या करना है, जब भी आप कोई नया लेसन सीखते हो उसके बाद रीड 1 लाइन ऑफ संस्कृत एंड 1 लाइन ऑफ इंग्लिश, तो आपको याद रहेगा कौन से वर्ड का मीनिंग क्या है। चलो लेट्स मूव अहेड। सेकंड क्वेश्चन, धातु साधित अव्ययानी चित्वा लिखत। अगेन सेम क्वेश्चन, बट दिस टाइम विच धातु साधित अव्यय? त्वांतव्य। क्विकली फाइंड आउट त्वांतव्य। 1 2 3 4 कितने भी हो सकते। जश, याशिका करेक्ट आंसर। यस आर्या करेक्ट आंसर। रिया, तन्वी, प्रज्ञा, तीर्थ, निलय, all are giving perfect answer this time. Very good, because twantavya is very easy to recognize and we have here two twantavyas, chintayitva and krutva. ये मैं हाईलाइट करके क्यों दिखा रही हूँ? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हाईलाइट इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। पहले लेसन में टेक्स्ट बुक में ही बॉक्स बना के रखो और ऊपर लिख दो बॉक्स मतलब त्वांत, लेबंत, तुमंत अव्यय। तो एग्जाम के टाइम बस एक बार वो बॉक्स देख के चले गए, सेम पैराग्राफ आने वाला है और हम आंसर इजीली लिख सकते हैं। चिंतयित्वा आफ्टर थिंकिंग एंड कृत्वा आफ्टर डूइंग। चिंतयित्वा आफ्टर थिंकिंग एंड कृत्वा आफ्टर डूइंग। अचिंतयत is not त्वांतव्य। Someone is asking why? Because अचिंतयत के एंड में त्वा किधर आ रहा है? सिंपल है, त्वांत मतलब अंत में, एंड में त्वा चाहिए। ओके तो चिंतयित्वा इज करेक्ट। अचिंतयत जो सेकंड लाइन में आया हुआ है दैट इज क्रियापद, नॉट अव्यय। चलो आई होप आपने आंसर्स नोट डाउन कर लिए इन लेसन नंबर 1। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग ये सब क्वेश्चंस कहाँ से है, तो लेसन नंबर 1 के ऊपर डिपेंडेंट ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो त्वांतव्य फाइंड आउट करो, ल्यबंत, तुमंत एक्सेट्रा। चलो अभी आते हैं एंड ऑफ द टॉपिक पे। एंड ऑफ द टॉपिक में वी हैव अ बिग लिस्ट ऑफ वर्ड्स, लिस्ट ऑफ अव्ययस इन फैक्ट। उसमें अभी ठीक से पहले टाइटल देखना है। येलो कलर का जो रो है वो अंडरस्टैंड करना है। रो का पहला वर्ड है धातवः। धातवः मीन्स धातुज। क्रियापद के स्टार्टिंग्स दिए हुए हैं, रॉ मटेरियल्स, जैसे हसती का हस, वसती का वस, खेलती का खेल, खादती का खाद, पठती का पठ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रॉ मटेरियल्स जो कि ग्रीन कॉलम में लिखे हुए हैं। अभी फिर से येलो फर्स्ट लाइन के ऊपर जाना। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्त्वा। क्त्वा, क एंड त्वा। क एंड त्वा मतलब त्वांतव्य। त्वांतव्य का ही शॉर्ट फॉर्म है और एक नाम है त्वा। वो कैसे बना वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी, आज नहीं। आज हमने सिर्फ सीखा है त्वांत ल्यबंत अव्यय को रिकॉग्नाइज करना, उसका नाम ये क्यों है नेक्स्ट लेक्चर में। देन है ल्यप। ल्यप इज अ नेम ऑफ ल्यबंत अव्यय। एंड लास्ट है तुमुन। तुमुन इज ऑल्सो यू कैन से अनदर नेम ऑफ तुमंत अव्यय। तो अभी यहाँ पे कैसे दिया है, एक ही धातु दा का अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग अव्यय में कैसे वो दिखाई देता है वो वहां पे दिया हुआ है। तो आपका टास्क ये है टिल नेक्स्ट वीक, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये। पूरा जो टेबल है आपको 2 टाइम्स आपके नोटबुक में लिखना है एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीक तक पूरा लर्न करना है। डेली आपको ये टेबल 2 बार रिवाइज करना है, देख के आपको रिसाइट करना है। रिसाइट कैसे करना है वो बताती हूँ। दादत्वा प्रदाय दातुम, पापीत्वा निपीय पातुम। मतलब क्या है, दा का त्वांतव्य होता है दत्वा आफ्टर गिविंग, प्रदाय इज लेबंतव्य आफ्टर गिविंग, एंड दातुम मीन्स टू गिव। दातुम मीन्स टू गिव। वैसे ही पा का त्वांतव्य है आफ्टर ड्रिंकिंग, पीतवा।
पाका ल्यबंतव्य निपीय आफ्टर ड्रिंकिंग, मीनिंग उसका सेम है. एंड तुमंतव्य है पाका पातुम, मतलब टू ड्रिंक. तुमंत का मीनिंग हमेशा टू डू, टू ड्रिंक, टू डांस एक्सेट्रा होता है. एंड त्वंत ल्यबंत का मीनिंग आफ्टर डूइंग समथिंग, आफ्टर सिंगिंग, आफ्टर डांसिंग एक्सेट्रा होता है. ओके, तो यू हैव टू लर्न इट लाइक दिस. दादत्वा प्रदाय दातुम, पापीत्वा निपीय पातुम, स्थास्थित्वा उत्थाय स्थातुम, ज्ञान्यात्वा विज्ञाय ज्ञातुम, गैगीत्वा प्रगाय गातुम एंड सो ऑन. चलो, तो अभी उसका एक प्रैक्टिस हम लोग ये सेशन में ही कर लेते हैं कि आप घर पे कैसे रिवाइज करने वाले हो. आई वांट सम वॉलंटियर्स who will ready to read this table orally. Table is in your textbook itself under भाषा सूत्रम और धातु साधित अव्ययानी. ग्रामर सेक्शन में है, भाषा सूत्रम में, जहाँ पे आपके टेबल्स दिए हुए हैं आफ्टर टेबल्स. चलो, who is ready to read the table? Yes, Jash. Hello, ma'am. Yes, Jash. Okay, ma'am. I will start. Yes, you have to read from da till shru. Okay, ma'am. दत्वा प्रदाय दातुम, पित्वा निपीय पातुम. एक मिनट. हाँ, वो ग्रीन वाला लाइन भी रीड करना. दा दत्वा प्रदाय दातुम, पा पीत्वा निपीत्य पातुम, ऐसे. ओके, सॉरी मैम. दा दत्वा प्रदाय दातुम, पा पित्वा निपीय पातुम, स्था स्थित्वा उत्थाय स्थातुम, ज्ञात्वा विज्ञाय ज्ञातुम, गई गीत्वा प्रगाय गातुम, ध्यात्वा अनुध्याय ध्यातुम, जित्वा विजित्य जेतुम, नीत्वा आनीय नेतुम, श्रुत्वा अपश्रुत्य श्रोतुम. वेरी गुड, थैंक यू. वेलकम मैम. Let's give chance to Yashika. Yashika, Yes, ma'am. continue from bhu dhatu till vacha dhatu. Okay, ma'am. भू भृत्वा अनुय भ्रुसुत्य. Sorry. भू भृत्वा अनुय भृत्य Anubhuya अनुभूय bhavitum. भवितुं कृ कृत्वा उपकृत Kartum. कर्तुं श्रमो स्मृता वीर Vismrutya. विस्मृत्य विस्मृतुं श्रुत्वा Anusrutya. दृष्ट्वा आदिश्य ओके, एक मिनट, मेरे साथ पहले ये रिसाइड करो. श्रुत्वा श्रुत्वा अनुसृत्य अनुसृत्य सर्तुम. सर्तुं. नेक्स्ट बोलना दिशदिष्ट्वा दिष्ट्वा आदिश्य आदिश्य देष्टुम. देष्टुं. दृशदृष्ट्वा दृष्टा संदृश्य सन्दुष्ट द्रष्टुम. द्रष्टुं. प्रचपृष्ट्वा प्रचपुष्टा आपृच्छ आपृच्य प्रष्टुम. प्रष्टुं. स्पृशस्पृष्ट्वा पृष्ठस्पृष्टा संस्पृश्य सम्पृश्य स्प्रष्टुम. स्प्रष्टुं. सिचसिक्त्वा सित्वा अभिषिच्छ अभिस्विच्य सेक्तुम. सेतुं. मुचमुक्त्वा मुचमुक्त्वा विमुच्य विमुच्य मोक्तुम.
मुक्तुम वच उक्त्वा वच उक्त्वा प्रवाच्य प्रवाच्य वक्तुम। वक्तुम। ओके आशिका, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। ओके मिस। यस, थैंक यू। चलो, लेट्स गिव चांस टू यशवी। यस यशवी फ्रॉम विक्रोली। हेलो यशवी। हेलो मैम। You have to start from right side, वह धातु। यस मैम। Yes, वह thank you. वह उड्वा निवह्य वोढुं वस उचित्वा उषित्वा निवस्य वसितुं वद उदित्वा प्रोद्य अनुद्य वदितुं कथ कथयित्वा विकत्य कथयितुं चोरयित्वा अभिचोर्य चोरयितुं क्षल शालयित्वा प्रक्षालय शालयितुं रचयित्वा विरचय रचयितुं गणयित्वा विघ्नय गणयितुं Okay, stop. पूजयित्वा ओके Okay, पूजयित्वा कंटिन्यू करो एक लास्ट। पूजयित्वा संपूज्य पूजयितुं। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। यशवी, बहुत अच्छे से रीड किया यशवी ने, वेरी नाइस। लेट्स गिव चांस टू आर्या। आर्या फ्रॉम साईधाम। Yes, miss. यस आर्या, कंटिन्यू फ्रॉम घुष घोषयित्वा। Yes, miss. Dhusha घोषयित्वा संघोष्य घोषयितं मृग नर्तित्वा अभिमुत्य नर्तितुं क्रन्दित्वा आक्रन्द क्रन्दितुं पठित्वा अनुपठ्य पठितुं लिखित्वा विलेख्य लिखितुं हस। ओके, वेट। थैंक यू सो मच यशवी। सॉरी आर्या। आर्या ने भी बहुत अच्छे से रीड किया। लेट्स गिव चांस टू प्रज्ञा। यस प्रज्ञा। सौजन्य। Yes, miss. Yes, read the last part from Vanda till last. Sorry, from Hasar till last one. वन्दित्वा अनुवन्द्य वन्दितुं ग्रह धृत्वा संजुह गृहीतं गं गत्वा आगम्य गन्तुं नम नत्वा प्रणम्य ननन्तुं रम गत्वा नन्तुं रम गत्वा अरस्य गन्तुं। Very good, Saujanya. Thank you. Okay, students. So in this manner, you have to practice it daily. हाँ, तो 1 week में रोज आपको 10 minutes, बस 5 minutes एक बार बोलने के लिए ये टेबल लगता है, and 10 minutes for 2 times. 2 times आपको रोज ये टेबल बाय हार्ट करना है। 1 week में कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज अगर ये टेबल बाय हार्ट होगा तो ही हम एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे बेस्ड ऑन ऑल दीज अव्ययस। तो ये टेबल के साथ ही हमें सीखना है हाउ टू फ्रेम त्वांतल यबंतस एंड तुमंतस। अभी तो आपने सिर्फ क्या सीखा है, हाउ टू रिकॉग्नाइज इट, हाउ टू फ्रेम इट हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। नाउ विल मूव अहेड एंड वी हैव टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। Okay. So now we have to focus on the topic entitled as किम करवाणी। त्वांतल यबंत का जो डिफिकल्ट पार्ट है हम एक लेक्चर के बाद देखने वाले हैं। अभी एक सिंपल सा टॉपिक हमें करना है विच इज किम करवाणी। अभी ये जो किम करवाणी टॉपिक है, इट इज अ इंट्रोडक्शन टू द लकार एंटाइटल्ड एज लोट लकार। तो लास्ट ईयर इफ यू रिमेम्बर आपने 2 लकार सीखे थे, कौन से थे वो लकार? क्विकली टेल मी इन चैट बॉक्स।
आपने 2 टेंसेस सीखे थे संस्कृत में। Yes, Harshit. Harshit, do you have any doubt? Yes. Can we make this Hmm. table means half table and half table? Means you have to learn half table for a week and No, then no, half means, table for next week. I am saying that can we make half table in notebook after in one page and half table in second page means till first Yes, आता yes. तो Of course, लेफ्ट साइड आपको एक पेज पे मतलब वो पहले 4 कॉलम्स बनाने हैं एंड कंटिन्यू करना है, एंड देन राइट साइड के 4 कॉलम्स बनाने हैं ऑन नेक्स्ट पेज। and ma'am एक साथ we have to हाँ। solve that exercise of Kim. नो नो नो, वो एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड देन यू हैव टू राइट डाउन एज होमवर्क। Thank you, miss. Okay. So Harshit was asking question regarding Twantal, Yabanta, Tumanta. तो as Harshit said कि 8 कॉलम्स ट्वांतल यबंत तुमंत अव्यय का जो टेबल है वो 8 कॉलम्स एक साथ हमारे नोटबुक पे नहीं हो सकते एक पेज पे, तो हम लोग एक पेज पे लेफ्ट साइड के 4 कॉलम्स करेंगे धातु, त्वा, ल्यप एंड तुमुन, एंड देन अगेन नेक्स्ट पेज पे हम लोग और 4 कॉलम्स बनाएंगे फॉर द राइट साइड वाला धातु। ओके, वह से जो स्टार्ट होता है वहां से। Now let's focus on the topic Kim Karavani. So I was saying Kim Karavani is the introduction for lakar, some lakar, and that lakar is called as lot lakar. Now all of you are answering that you have already learned lat lakar and lang lakar, right? lat lakar को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? lat lakar को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एंड lang lakar को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Yes, correct. Lat lakar is present tense, and what is lang lakar? Correct. Tirtha, Nilay, Harshit, Parth, many of you are answering correct. Lang lakar is past tense. So 2 tenses हमने पहले ही सीख लिया, अभी हमें एक थर्ड पार्ट सीखना है ऑफ लकार, बट इट इज नॉट अ टेंस। ये एक्चुअली हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि हमें किसी से परमिशन लेनी है या फिर हमें किसी को ऑर्डर देनी है, तो हम कैसे यूज करते हैं। जस्ट लाइक इंग्लिश में हम मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करते हैं लाइक मे, कुड, कैन, शुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यस, इम्परेटिव मोड जिसको हम कहते हैं, वही इम्परेटिव मोड यानी कि आज्ञार्थ हमें यहाँ पे सीखना है इन द टॉपिक किम करवाणी एंड लोट लकार। तो लोट लकार का इंट्रोडक्टरी पार्ट किम करवाणी में दिया हुआ है, एंड आज हम क्या करेंगे, सिर्फ ये छोटा सा कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है, यूज ऑफ लोट लकार दिया हुआ है, वो एक बार रीड करने वाले एंड अंडरस्टैंड करने वाले हाउ द वर्ब्स ऑफ लोट लकार लुक। ओके, तो वो कैसे दिखते हैं वर्ब्स, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले। क्विकली आई वांट एनी ऑफ यू टू रीड दिस कॉन्वर्सेशन। हु वुड लाइक टू रीड? यस, अरमान। हेलो मैम। हेलो अरमान, रीड द कॉन्वर्सेशन। फर्स्ट 3 डायलॉग्स आपको रीड करने, सौरभ तक। मिस ओनली छात्रास डायलॉग ना? छात्राः, शिक्षिका एंड सौरभ। छात्राः आचार्य नमो नमः, शिक्षिका नमो नमः, सुप्रभातम्। उपविशत् सौरभः तन्यः च आचार्य अपि मार्जयव याव फलकम्। Okay, thank you so much. शिक्षिकाः Wait. ओके अरमान, पहले हमें ये समझ के लेना है एंड देन विल मूव अहेड। ओके, तो सबसे पहले अरमान ने रीड किया छात्राः। छात्राः यानी कि ऑल द स्टूडेंट्स आर सेइंग टू टीचर आचार्य नमो नमः, जैसे कि आप स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बोलते हो नमो नमः, जस्ट लाइक दैट। नमो नमः इज हेलो टीचर, नमस्ते टीचर, ऐसे हम जो बोलते हैं ग्रीट करते हैं वैसे ही यूज किया गया है। देन नेक्स्ट है शिक्षिका सेज नमो नमः, अगेन वही रिप्लाई यस नमो नमः एवरीवन यानी कि हेलो एवरीवन। एंड देन सुप्रभातम मीन्स गुड मॉर्निंग। उपविशत सिट डाउन,
उपविशत सिट डाउन। अभी देखो ये वर्ड उपविशत जो है वो पिंक कलर में हाईलाइट किया हुआ है, मतलब टीचर ने कुछ ऑर्डर किया है स्टूडेंट्स को कि ऑल ऑफ यू कैन सिट डाउन। And then next है सौरभः तनयः च. These are the two characters, in fact two students from the class, and they both are saying आचार्य यानी कि ओ टीचर अपि मार्जयाव फलकम। फलकम का मीनिंग तो आपको पता है, फलकम यानी कि यस ब्लैक बोर्ड, एंड मार्जयाव यानी एंड देन क्वेश्चन मार्क है, मतलब दे आर आस्किंग क्वेश्चन। सो क्या लगता है आपको मार्जयाव वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है? अपि मार्जयाव फलकम, this is a question. Yes. So shall we rub the board? क्या हम ये बोर्ड क्लीन कर सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा है सौरभ एंड तनयः ने। एंड अगेन देखो वो जो वर्ड है मार्जयाव उसको पिंक कलर में हाईलाइट किया है, मतलब दोनों भी वर्ड्स अभी तक जो हमने देखे वर्ब्स, इनफैक्ट उपविशत एंड मार्जयाव, बोथ वर्ब्स आर ऑफ लोट लकार, दोनों भी लोट लकार के वर्ब है। एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि लोट लकार का फंक्शन जो है ऑर्डर देना भी है और परमिशन, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर आस्किंग परमिशन। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। लेट्स गिव चांस टू समवन एल्स टू रीड। ओनली आपको शिक्षिका का जो डायलॉग है वो रीड करना है। यस श्रुति, एंड नेक्स्ट कृतिका को चांस देंगे हम। यस श्रुति। Yes, ma'am. Yes, you have to read the dialogue of Shikshika. Yes, miss. अवश्यं मार्जयतं सूचनामपि लिखतं नीरजे वातायनम् उद्घाटय अतीव उष्मा बाधते अयि मृदुले व्यजनानि चालय। Very good. Thank you so much. Thank you, ma'am. Okay. तो देखते हैं टीचर क्या क्या कॉन्वर्सेशन कर रही है विद द स्टूडेंट्स। टीचर इज सेइंग अवश्यम, यस श्योर, मार्जयतम, प्लीज रब द बोर्ड, ओके, और यू मे रब द बोर्ड। देन सुवचनम अपि लिखतम, टीचर ने और एक ऑर्डर दिया, सुवचनम यानी कि कोटेशन, लिखतम यू शुड राइट कोटेशन आल्सो ऑन द बोर्ड। सो कि बोर्ड जो है वो बहुत ही क्लीन करना है, एंड देन आफ्टर दैट एक अच्छा सा कोटेशन भी लिखना है। ऑल्सो टीचर इज सेइंग टू नीरज झा। अभी ये देखो नीरज जे जो वर्ड यूज किया है, नीरज इज अ संबोधनम फॉर गर्ल नीरजा। एक्चुअल नाम नीरजा है बट यूज करते वक्त हमें बोलना है नीरजे। सो नीरजे ओ नीरजा वातायनम उद्घाटय। व्हाट इज वातायनम? क्विकली टेल मी। 8th स्टैंडर्ड में ये वर्ड आपने सुना है, वातायनम, फ्रॉम चित्रपद कोश। यस, अयान ने पहला आंसर दिया है, इट इज window, and now many of you are answering correctly. Yes, right, the answer is window. Vatayanam means window. Udghataya मतलब open. तो मे बी टीचर बोल रही है कि बहुत गर्म हो रहा है, ओके, सो टेम्परेचर बहुत है एंड हाई है, एंड इसीलिए टीचर ने सजेस्ट किया कि ओपन द विंडो। उद्घाटय, अगेन उद्घाटय को भी पिंक कलर दिया है, तो वो कौन सा लकार है? लोट लकार। एंड देन टीचर सेज अतीव उष्मा बाधते। उष्मा मीन्स yes, hot. So the room temperature is high or we are feeling very hot. Then next है आई मृदुले यानी कि ओ मृदुला। अगेन a name of मृदुला has been used as मृदुले। तो गर्ल्स का नाम जब भी होता है मृदुला या कविता या कोई भी एंडिंग इन आ वाला नाम, तो तब हमें यूज करते वक्त उसको ए में चेंज करना है। माला का माले, वैसे मृदुला का मृदुले, नीरजा का नीरजे, कविता का कविते, एक्सेट्रा। व्यजनानी यानी कि फैन, व्यजनानी फैंस, सेम वर्ड फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। एंड चालय यानी कि स्विच ऑन, चालय स्विच ऑन, स्विच ऑन ऑल द फैंस इन द रूम। तो मे बी ये उनका फर्स्ट लेक्चर रहेगा, अभी अभी स्कूल में एंटर किया एंड इसीलिए टीचर इज गिविंग ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स। Now let's move ahead. We want someone to read the dialogue of Dheeraj as well as Shikshika. So we'll give chance to Kritika.
Yes, Kritika from Ghatkopar. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Yes. Good evening. Read from Hello. Dheeraj. Yes, Kritika. Good evening. धीरजः आचार्यै start. अपि प्रवेशानि वर्गं शिक्षिका आम् आगच्छ स्थाने उपविश श्रान्तः दृश्यसे किञ्चित् जल पिब अयि छात्रः अधुना अहं प्रश्नान् पृच्छामि सम्यक् विचिन्त्य उत्तरत् यूयम् कोलाहलः मास्तु एकः एव उत्तरं वदतु Very good. हेलो मैम Very good. Very good. Perfect. Thank you, Kritika. थैंक यू मैम So now let's understand the meaning of last few sentences. So Dheeraj says, Acharya, ओ टीचर, अपि प्रविशानी वर्गम. तो आपको दिख रहा है एक बॉय जो है पिक्चर में लेट आया हुआ है, लेट कमर है एंड डोर में वहां पे ही स्टैंडिंग. सो ही इज आस्किंग, धीरज इज आस्किंग, अपि प्रविशानी वर्गम. यस करेक्ट. मे आई कम इन. एंड देन यहाँ पे देखो मे आई कम इन के लिए प्रविशानी वर्ड यूज किया हुआ है. तो अगेन परमिशन के लिए भी लोट लकार यूज हुआ है यहाँ पे. अभी देखते हैं कि उसको परमिशन मिल गई है कि नहीं. तो शिक्षिका सेज आम आगच्छ. आम मीन्स यहाँ पे मैंगो नहीं, आम मीन्स यस, क्योंकि म हलंत है. आगच्छ यस यू कैन कम इन. एंड देन स्थाने उपविश एंड सिट ऑन योर प्लेस. उपविश. तो देखो अगेन परमिशन ग्रांटेड के लिए भी ये लोट लकार यूज किया गया है. देन टीचर सेज श्रांतः दृश्यसे. श्रांतः मीन्स टायर्ड. दृश्यसे मतलब यू आर लुकिंग वेरी टायर्ड. शायद भाग के आया होगा बिकॉज लेट हुआ है. एंड देन टीचर ऑफर सम वाटर. किंचित जलम पीब. सजेशन दे रही है, एडवाइस दे रही है कि बहुत थके हुए लग रहे हो, सो ड्रिंक सम वाटर. किंचित सम. ओके. एंड जलम वाटर, पीब ड्रिंक. आफ्टर दैट नेक्स्ट वी हैव अयि छात्राः. तो नाउ धीरज के साथ बातचीत हो गई है टीचर की, एंड नाउ टीचर इज addressing to all the students. अयि छात्राः, ओ all dear students. अधुना अहम, now I shall प्रश्नान पृच्छामि. प्रश्नान यानी कि questions, पृच्छामि यानी कि ask. So I shall ask some questions to you all. तो शायद लेक्चर स्टार्ट हो गया है एंड टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली है बिफोर द लेक्चर. टीचर इज ऑल्सो टेलिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स सम्यक विचिन्त्य. सम्यक ये वर्ड आपने सुष्ठु में, सुष्ठु गृहीत चौरह में सीखा है. सम्यक मीन्स, क्विकली टेल मी द आंसर. यस, सम्यक इज properly. Samyak is properly. Someone is saying think or six. Wrong answer. Six के लिए word था should and think के लिए चिंत. Samyak means properly. Vichintya means after thinking. Vichintya means after thinking. Uttarata means answer. Uttarata means answer. And Yuyam means you all. So you all should answer the questions properly after thinking. You all should answer. तो अभी देखो अगेन टीचर ने यहाँ पे ऑर्डर के लिए क्या यूज किया है, लोट लकार यूज किया है. अभी देखते हैं लास्ट में टीचर क्या कह रही है. कोलाहलः मास्तु. कोलाहलः मीन्स नॉइज, गड़बड़, एंड मास्तु मीन्स डू नॉट मेक नॉइज. मास्तु हम लोग वहां जब तब यूज करते हैं जब हमें कोई एक्शन को डिनाई करना है, स्टॉप करना है. ओके. And then lastly, the last sentence of the teacher is एकः एव उत्तरं वदतु. एकः एव यानी कि one at one time. तो एक क्वेश्चन के लिए एक ही को आंसर देना है. Raise your hand and then answer. ऐसा यहाँ पे टीचर बोल रही है. So all these pink words are nothing but lot lakar. Okay, so we'll stop here. We'll continue for the next lecture and we'll continue this lot lakar first and then we'll start doing the exercise of किम कृत्वा and किम कर्तुम. But आपका homework क्या है? You have to write down the table of किम कृत्वा किम कर्तुम 2 times in your notebook. 2 times. Each word को आपको 2 times, यानी कि दा को लिखा तो दा दत्वा, दा दत्वा,
दातुम एंड सो ऑन, जो भी है, दा प्रदाय, दातुम, दत्वा, जो भी 3 वर्ड्स है वो आपको लिखने हैं। देन अगेन सेम को आपको रिपीट करना है, पापीतवा निपीय पातुम, अगेन पापीतवा निपीय पातुम एंड सो ऑन। Okay, so we'll stop here. Thank you so much and पुनर्मिलामः।